Okay, guys. In the last class, what we had covered was primarily chi-square distribution. And in chi-square distribution, I had given you the basic essence that a chi-square distribution is nothing but a squared standard normal distribution. So, if you have a standard normal distribution, say a variable x, and this is a random variable, what you do is you standardize this. Now, how do you standardize this variable? The way of standardizing is that variable's sample mean minus the population mean upon the standard error of that, the standard error or the standard deviation of x. ठीक है, so इससे हमें हमारे पास आ जाता है z which is normally distributed with 0,1. इसको अगर हम स्क्वायर करना शुरू कर दें, z स्क्वायर को कर दें, तो दैट वेरिएबल, दैट न्यू वेरिएबल, सपोज हमने कहा w इज इक्वल टू z स्क्वायर, so that new variable will have a chi-square distribution with 1 degrees of freedom. Okay, so this is a basic thing that we understood in the previous class. We were here. Guys, is my network gone? Guys, I think my network was gone, right? Yes, sir. Okay, so let me come back to this again. So what we were doing was chi-square distribution, and in chi-square distribution I had talked about the fact that we have a variable xi. ठीक है, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है xi, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि उसका एक फाइनाइट मीन है और एक फाइनाइट वेरिएंस है. we discussed in the last to last class that any random variable can be converted into a standard normal variable. ठीक है, उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? you take the sample mean minus the population mean upon the standard deviation. आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा जिसका वेरिएंस जो होगा वो 1 होगा और जो मीन होगा 0 होगा. नाउ माय क्वेश्चन टू यू for today's homework, guys, these kinds of homeworks are for you only. ठीक है, I will not go back to check that whether you're doing it or not. You need to prove that z has 0 mean and 1 variance. ठीक है, you can do that. ये stats में पढ़ा होगा guys. Yes, sir. Good. So you have to prove this, and the reason that I am emphasizing on a lot of these small proofs which are not in my course, in general, if you know how to prove these things, it will help you both in ISI as well as D school. ठीक है, तो दोनों के एंट्रेंसेस में you will have, especially D school के एंट्रेंसेस में you will have very intensive econometrics and statistics. तो बी केयरफुल, जो मैं छोटे छोटे प्रूफ्स लेके बोल रहा हूँ वो अपना साइड में सॉल्व करके एक जगह पे रख लो. देन the other thing is that हमारे पास z आ गया. अब हम कह रहे हैं कि एक हम नया वेरिएबल लेते हैं w, और उसको मैंने असाइन किया कि वो z स्क्वायर है. सो दैट w वेरिएबल विल हैव अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और अगर मैं 5 अलग रैंडम वेरिएबल ले लेता, उन सबको स्टैंडर्डाइज कर देता और फिर उनका स्क्वायर ले लेता, तो जो नया वेरिएबल बनता w, या उसको बोल लो y इज इक्वल टू z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर टिल z5 स्क्वायर, that will have a chi-square distribution with 5 degrees of freedom because you have 5 different terms here. ठीक है, so that was about chi-square distribution, and the way that a chi-square distribution works is that आप degrees of freedom बढ़ाना शुरू करोगे, आपको दिखाई देगा कि पहला जो आपका कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, फिर आपका कर्व जो होगा वो चेंज होना शुरू होगा, फिर वो कुछ इस तरीके से होना शुरू होगा, फिर अल्टीमेटली आते आते वो थोड़ा सिमेट्रिक होना शुरू हो जाएगा जब आप k की वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे. ठीक है, एंड the reason for this is essentially कि chi स्क्वायर जो है वो बिल्ट किस तरीके से है उस चीज पे बहुत मैटर करता है. chi स्क्वायर किस चीज पे बिल्ट है? chi स्क्वायर बिल्ट है z स्क्वायर पे. व्हाट इज z? पहले तो हम z देख लेते हैं. z क्या है? z is a normally distributed variable with 0,1. ये आपका z है. तो if you see z की जो वैल्यू है वो 0 उसकी मीन वैल्यू है. तो आप
जितने रैंडम वेरिएबल निकालोगे इसमें से गाइस, जस्ट सपोज ये एक z है, हमारे पास एक x था, उस x को हमने z में कन्वर्ट कर दिया z1 में, ठीक है। नाउ गाइस टेल मी कि अगर आप ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसके अंदर से अगर आप कोई भी एक वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो मोर लाइकली क्या होगा कि वो जीरो के पास होगी कि जीरो से दूर होगी। गाइस द क्वेश्चन इज टू यू। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब एक सेकंड निकिता, मुझे लगता मेरा वॉल्यूम यहाँ से कम है। हाँ निकिता क्या बोल रहे थे? निकिता आई कांट हियर यू फॉर सम रीजन। I think it will be closer to 0 It will be closer to zero. Why would it be closer to zero? because we're estimating that the maximum difference would be closer to the mean. हाँ, so basically आप कह रहे हो एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आप एक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो वो वैल्यू आएगी वो अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जीरो है तो आप यू कैन से दैट अच्छा हाँ कोई भी वैल्यू होगी तो जीरो से आसपास ही होगी। जितना ज्यादा जीरो से दूर होगी उतनी प्रोबेबिलिटी उसकी कम होगी ना। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कह रहे हैं? इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह रहे हैं कि मोस्टली वैल्यूज जो हैं, ये देखो इतनी रेंज की वैल्यू जीरो के आसपास ही हैं, और बहुत कम वैल्यूज हैं जो जीरो से कम। अगर मैं आपको वैल्यू लूँ 3 तो वो जीरो से देखो बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा दूर है और बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप कोई वैल्यू, सपोज आपने कोई भी एक वैल्यू पिक करी, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो जीरो से बहुत दूर नहीं होगी, और उसका जो स्क्वायर, सपोज मैं 0.2 लेता हूँ, उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा 0.04, ठीक है। और उसको अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका का स्क्वायर का आएगा, तो उसको अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, मतलब वो मेजरली वैल्यूज जो है वो जीरो के पास है, ठीक है। तो आप जितना आप ये वैल्यूज ऐड करते रहोगे, जितना आप के ऐड करते रहोगे, आपकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जीरो से दूर होनी शुरू हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा के ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ट होता है। देन जस्ट see the shape of a chi-square distribution, you'll analyze, you'll be able to figure out कि ये जीरो से दूर क्यों जा रहा है। नेगेटिव तो मैं तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, आप माइनस वाली कोई वैल्यू को भी पिक करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो चुकी होगी। तो दैट मीन्स इट विल ओनली बी इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। एंड एज यू इंक्रीज के, जैसे जैसे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड करोगे, वैसे वैसे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो के पास जो होने वाली थी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। सपोज आपने दो z ऐड कर दिए, तो एक ये 0.04 था, एक 0.06 था, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो थोड़ा सा और दूर हो जाएगी वो वैल्यू k = 2 के लिए। तो ये k = 1 के लिए है, ये k = 2 के लिए, थोड़ा सा और स्प्रेड आउट हो जाएगी। So this is the essence of a chi-square distribution, and the main thing to remember guys here was this, that your sample variance, now coming to Nikita's point from yesterday's class, the point of confusion was that she was assuming कि sample variance be normally distributed है। No, that's not the case। sample variance जो है that is chi-square distributed, and the way that we write it is in this way, that n-1 sx square, which is the sample variance upon the population variance, has a chi-square distribution. Now there is a proof to this. I will provide you the proof, but you might have done it in statistics. Even if you have not done it, you might take it down as a PDF somewhere. Okay, I'll give you the written notes for this. I had to actually find it in my stats notes. So you just, कोई बात नहीं स्वस्ति, डोंट वरी अबाउट द प्रूफ, आई विल टेल यू द प्रूफ। यूजुअली जो प्रूफ है वो इतना फोकस नहीं, हमें प्रूफ पे इतना फोकस नहीं करना, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। बट आई सेंड यू द प्रूफ, एंड इफ टाइम परमिट्स नेक्स्ट वीक, अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक से कर लेते हैं, तो आई विल गो थ्रू द प्रूफ एज वेल। जस्ट पॉइंटेड टू मी नेक्स्ट वीक कि टाइम परमिट्स वी विल डू दिस प्रूफ, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स गाइस। I think you should have done it this in statistics, but still, assuming that you've not done it, but you need to remember this particular proof, that the sample variance upon the population variance into n-1
has a chi-square distribution with n-1 degrees of freedom. And we will be using this. ये बहुत ज़्यादा important है, आपको अपनी कॉपीज़ के बैक में डाल लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसी को हम यूज़ करेंगे व्हेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो वेरिएंस है एरर टर्म्स का, उसका जो एरर टर्म्स जो हम बात करेंगे इकोनोमेट्रिक्स में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेंज क्या है. ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस पर्टिकुलर proof of sample variance. Now let's move on to what we have to do today. Now let's see, ये हमने कर लिया था. This is what I was telling you. देखो probability density function जो है, probability density function देखो कैसे 0 से 0 के पास है. जब आपका k इज इक्वल टू 2 और ये k इज इक्वल टू 1 में तो और ऐसे हो जाता. ठीक है, तो और जितना आप k इंक्रीज करोगे वो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहेगी. देखो हमने देखा था ना, काई स्क्वायर, यहाँ पर काई स्क्वायर है. अगर आप एक k लोगे तो एक k का मतलब हुआ कि आपने एक ही, इसके पीछे एक ही z है, और वो z की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास ही आई होगी. उस z का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी, जो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस वेरिएबल की, वो बहुत ज़्यादा 0 के पास होगी. 0 से दूर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. अब किस किस को ये पॉइंट समझ में आया? पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, किस किस को ये पॉइंट समझ में आया था? किसी का नहीं आया समझ में पॉइंट? भाई हाँ ना, क्या हुआ? लेट मी आस्क पीपल. राधिका यस सर. हाँ राधिका, ये समझ में आया पॉइंट? नहीं सर. अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो कि नहीं समझ में आया? अरे और म्यूट करो. और किसको नहीं समझ में आया ये पॉइंट? गाइस इफ यू डोंट लेट मी नो कि तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? चलो, सो हमने बोला था, हमारा देखो xi जो था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था विद म्यू एक्स एंड सिग्मा स्क्वायर. इस xi को हमने स्टैंडर्डाइज किया. ठीक है, स्टैंडर्डाइज किया तो z बना दिया, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया वो 0,1. स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से. ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करते हैं. तो आपने ये स्टैंडर्डाइज कर दिया, 0,1 आ गया. अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है 0,1, आपका वेरिएंस है 1 और आपकी मीन है 0. अगर कोई ऐसा कोई क्लास है जिसमें सपोज दिस इज अ कैट एग्जाम. ठीक है, कोई कैट का एक क्वेश्चन है. कैट के क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव मार्क्स भी मिल सकते हैं, बट बहुत टफ क्वेश्चन है. बहुत टफ क्वेश्चन का मतलब होगा कि लोगों ने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन. समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? दिस इज समथिंग लाइक अ कैट क्वेश्चन विद +2. मतलब आपको अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको स्कोर मिल सकता है 0.5 का, 1 का, 2 का, मैक्सिमम 4 का, और नहीं तो आपको माइनस में, जितना खराब आप आंसर करोगे उतना माइनस में भी आपको मार्क्स मिल सकता है. तो दैट इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट यू हैव. तो दैट मीन्स अगर बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे लोग? यूजुअली लोग छोड़ देंगे, यही होगा क्वेश्चन. तो दैट मीन्स आपका जो सेंटर होगा वो 0 होगा टफ क्वेश्चन का. बट बहुत कम लोग अटेम्प्ट, जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया होगा उसका, उनको सिर्फ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था. सिमिलरली बहुत टफ क्वेश्चन को कोई बहुत ज़्यादा गलत सॉल्व कर दे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो मेजरली अगर आप क्लास का कोई सैम्पल उठाओगे, जिस पूरी क्लास को एक क्वेश्चन दिया, किसी ने क्वेश्चन आंसर किया, तो और इन ऑल लाइकलीहुड आपको वैल्यू मिलेगी कि वो 0 के पास ही है, क्योंकि तभी तो 0 मीन है. तो दैट मीन्स z की वैल्यू जो होगी वो 0 के पास, सपोज मान लो 0.2 होगी. हम एक w डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं विच इज z का स्क्वायर इज 0.04. तो w की वैल्यू, w इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद वैल्यू इज 0.04. 0.04 देखो स्केल पे कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा 0.04. ठीक है, बट और 0.04 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. बट मैं कहूँ कि किसी को 4 नंबर मिल गए हैं इस क्वेश्चन में, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो बहुत कम है. 4 मार्क्स मिले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो अगर 4 मिला है तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो गया. 16 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा. 16 आने की प्रोबेबिलिटी देखो इस वाले ग्राफ में, ये तो 2 वाले में देख लो, तो 2 वाले ग्राफ में कितनी कम प्रोबेबिलिटी है.
समझ में आया किस तरीके से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है? और ऐसे ही अगर आप ऐड कर दोगे, व्हाट इज काई स्क्वायर? काई स्क्वायर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दीज जेड्स। तो अगर आप एक और कोई डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, उसमें से जेड वैल्यू लोगे, सपोज उसमें से आई 0.16, तो 0.04 और 0.16 0.20 होगी, ठीक है। 0.20 हो जाएगी, वो आपकी वैल्यू कहीं यहाँ पर आ जाएगी, और उसकी देखो अब जो है नेक्स्ट वाले के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो जितना आप के बढ़ाओगे उतना आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप इस तरफ आते जाओगे और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता जाएगा। दिस इज हाउ यू ऑपरेट इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ this is the one proof that I asked you to remember and note it down. This is the most important proof. Now coming to F distribution. Now F distribution का एसेंस तब होता है, और इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम F डिस्ट्रीब्यूशन को. देयर इज समथिंग कॉल्ड विच वी विल स्टडी कॉल्ड अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में F टेस्ट आता है. So we will see all those statistics in econometrics as well. What this actually tells you is that there are basically two random samples. ठीक है, हम दो बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और उनकी वेरिएंसेस को एक्चुअली में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी अलग है, ये कितनी ओवरलैप कर रही है. So it's basically saying that how distributions overlap or how distributions are very different from each other. Now, the motivation behind this distribution is that you have a random sample x1 to xm. ये एक random sample है, sample 1. ठीक है, and ये जो random sample आया है, ये किससे आया है? ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है वेयर एक्स आई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एज म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज. ठीक है, ये यहाँ से आया और एम साइज है इसका. ठीक है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया. हमारे पास एक दूसरा सैंपल है जो दूसरी पॉपुलेशन से आया है. एक पॉपुलेशन दूसरी है वाई आई, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू वाई एंड सिग्मा स्क्वायर वाई. और इससे हमने एक सैंपल निकाला है. ठीक है, हमने एक सैंपल निकाला है y1 to y1 y2 till yn. तो n एलिमेंट्स हैं उस सैंपल के अंदर. हमने ये नाउ वी अज्यूम दैट दीज टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंटली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये दोनों सैंपल्स जो हैं ये IID हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ सपोज वी वांट टू नो कि इन दोनों सैंपल्स का वेरिएंस जो है वो सेम है या नहीं. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ दीज टू नॉर्मल पॉपुलेशंस आर सेम और नॉट. ठीक है, अगर हमने कह दिया कि ये दोनों वेरिएंस सेम है, तो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिमिलर पॉपुलेशन से हैं या बहुत ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है. ठीक है, दीज आर नॉट वेरी टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, और these are overlapping things. तो हम क्या करते हैं, हमने पहले सैंपल हम पहले सबसे पहले एक हमने जो हमारे पास फर्स्ट सैंपल था x का, हमने उसका सैंपल वेरिएंस निकाला, हमें ये मिल गया. हमने y का जो सैंपल निकाला था उसका वेरिएंस निकाला, ये मिल गया. नाउ f इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस. ठीक है, तो रेशियो ऑफ सैंपल वेरिएंस ऑफ x सैंपल वेरिएंस ऑफ y, यू जस्ट पुट इट लाइक दिस. and this F distribution has 2 degrees of freedom. जो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी m-1 और डिनोमिनेटर की डिग्री होगी n-1. तो ये न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इट इज नथिंग अदर दैन वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन. हम वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अगर f जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन गाइस? अगर f 1 के पास है, इफ इट्स अप्रोचिंग 1, देन व्हाट डज दैट मीन? दैट्स माय क्वेश्चन. दैट वेरिएंसेस बोथ x और y के जो वेरिएंसेस हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी कम टू. नाउ टू बी प्रिसाइज, वैसे F डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेसिकली बोलता है? अगर आप F डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, F डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली बाय समेशन x स्क्वायर एंड
ये एक्चुअली f है, ठीक है। तो बट हम f में बेसिकली क्या बात करते हैं, हम f में अज्यूम सबसे पहले करते हैं कि दोनों के दोनों जो वेरिएंसेस हैं, पॉपुलेशन वेरिएंसेस, वो सेम है, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तभी, अगर ये सेम है तो ये दोनों एक्चुअली में कट जाएंगे, तो आपका पास जो f रह जाता है वो चेक करने के लिए क्या रह जाता है, ये चेक करने के लिए रह जाता है। अगर ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं तो f की वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी, ठीक है। यूजली हम न्यूमरेटर में वो डालते हैं जिसका आपका f का वैल्यू ज़्यादा, जिसका s² ज़्यादा होता है। नाउ दिस इज हाउ योर f डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक, ठीक है। वी विल डील विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विद f। बेसिकली f का ये चीज़ एक और प्रूफ है दैट t² इंटू k इज बेसिकली f डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसके बारे में बात करेंगे इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। इफ यू स्टिल वांट टू सी द प्रूफ, मेरे क्लास नोट्स में वो जो थ्योरम वाला पेज है उसके अंदर इसके ऊपर देयर इज अ थ्योरम ऑन दिस एज वेल, ठीक है। बट हम इसको वी विल टेक दिस अप इन इकोनोमेट्रिक्स, और ये सिर्फ यूज होगी 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर, ये सिर्फ 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर यूज हो सकती होगी। वी विल सी लेटर ऑन कि ये कैसे आ रही है, क्या आ रही है। एक ये थ्योरम है, हम इस थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे दैट हाउ दिस अप्रोचेज fm। अगर हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन विद m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर एंड n गोज टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो chi² डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये होगा, ठीक है। अगेन दिस इज अनदर थ्योरम विच विल बी कवर्ड इन इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। डू नीड नॉट वरी, अभी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं इसको। और ये तीसरी थ्योरम, ठीक है। ये 3 थ्योरम्स जो हैं f के बारे में जो है वी टेक इट अप इन इकोनोमेट्रिक्स। नाउ suppose now let's see a small question here. An instructor gives you an econometrics, gives the same econometrics exam to 2 classes. तो suppose गार्गी में e-commerce का सेक्शन A है और सेक्शन B है, ठीक है। एक के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, एक के अंदर 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। Now what is this guys? What is 100 and what is 150? Can someone tell me? That is not sample size Saloni, that is population। पूरी population है। सैंपल तो मैं इसमें से उठाऊंगा ना, समझ में आया? ये तो मैंने पूरी क्लास के बारे में बात कर ली। अब इसमें से इस 100 में से मैं एक सैंपल उठाऊंगा, इस 150 में से एक सैंपल उठाऊंगा। सपोज ही ड्रॉज अ सैंपल, अब मैं 2 सेक्शन के स्कोर्स को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, एंड सपोज आई ड्रॉ अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 पीपल फ्रॉम हेयर, ठीक है, एंड आई पिक अप 31 पीपल फ्रॉम हेयर, एंड हमने वेरिएंसेस देखा, हमने सैंपल वेरिएंसेस देखे। सैंपल वेरिएंस जो आया इस x का, सपोज ये x है और ये y है, ठीक है, तो ये हमारा m हो गया और ये n हो गया, ठीक है ना। इसको बड़े वाले को आप ले लो, ठीक है, इसको आप ले लो। चलो इसका आप सिंपल वेरिएंस भी लिख लो कि इसका वेरिएंस है आपका 100 और इसका वेरिएंस है आपका 132, ठीक है। तो गाइस जिसका भी वेरिएंस ज़्यादा होगा ना, आप हमेशा उसको न्यूमरेटर में रखो, वो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी उस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप इसको x बोल दो और इसको y बोल लो, तो आपका जो f डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होता है, f इज बेसिकली सिग्मा एस एक्स स्क्वायर अपॉन with degrees of freedom with sy² with some degrees of freedom m, and this is यहाँ क्या होगा guys, m, what will be m here, good 30, and यहाँ पर n क्या होगा 24, all of you agree, ये हो गया 24। so all you need to do is, ये आपने वैल्यू पुट करी 1.32 को आपको चेक करना है 30,24 में इन योर, और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बट इन जनरल हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी कि 25% है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं दैट इन दोनों क्लासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है। तो उसकी रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कह रहे हो कि उन दोनों का जो मीन है, जो सैम्पल मीन है वो डिफरेंट नहीं होगा, उनको सैम्पल मीन 25% केसेस में आप रिजेक्ट कर सकते हो। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू कैन से दैट 75% चांसेस है कि ये सिमिलर क्या कहते हैं वेरिएंसेस हैं। तो इस तरीके से यू कैन पुट अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू कैन अप्रोच दिस। We will use this approach
इन इकोनोमेट्रिक्स टू सी कि हमारे जितने भी हम जब रिग्रेशन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि सारे वेरिएबल्स मिल के क्या y को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. दैट वी विल सी दैट दी हाउ द मॉडल का पूरा रोबस्टनेस जो है, जस्ट राइट डाउन दिस वर्ड कि मॉडल का पूरा रोबस्टनेस विल बी चेक्ड. वो रोबस्टनेस क्या है, कैसे है, वी विल सी इट ऑल ऑफ दिस लेटर. बट ओवरऑल मॉडल परफॉर्मेंस जो है वो आपको एफ से पता चलती है. जस्ट राइट दिस डाउन एज जस्ट अ ब्लैक थिंग दैट आई मेंशन कि ये ब्लैक बॉक्स है, मैंने अभी समझाया नहीं है. थिंग्स आर गोइंग टू अनरावल वन बाय वन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशंस गाइज. I just wanted to cover the basics of these distributions. Now let's go to hypothesis testing. अब हम hypothesis सर एफ टेबल यूज करना नहीं आता मुझे. अच्छा. न्यूमरेटर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड डिनोमिनेटर. चलो we will come to that guys. अभी मैं एक और इसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे काई स्क्वायर के और वेरिएंसेस के. तो वेरिएंसेस में एनएनी के समय काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो यूज करनी पड़ेगी. तो मैं यहाँ पर एफ टेबल पढ़ना सिखा दूँ. एफ टेबल गाइस स्टैट्स में नहीं करा, स्टैट्स में या डेटा एनालिसिस में सिंगल के लिए यूज करना सीखा है. सिंपल के लिए मतलब So we did it in the last topic, and even in the readings it was just 2 pages. They just told us that this is the formula, that's all. अच्छा ओके. अच्छा ठीक है. डोंट वरी आई कवर इट इन डिटेल. मैं अभी ना जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने सिर्फ अभी सिंपल बेसिक आपको ब्रीफ दिया है. हम एफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे जब हम अनोवा टेबल के बारे में आएंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो उसके अंदर मेजरली एफ टेबल ही यूज होती है. इनफैक्ट आई विल सेंड यू अ कपल ऑफ लिंक्स टू अंडरस्टैंड एफ even better, but still I'll explain you through those links as well. Don't worry about it. हम उसको rigorously हमें cover करना ही है. Let's move to hypothesis testing. But hypothesis testing से पहले हम statistical inference के बारे में बात करेंगे. ठीक है. This part statistical inference you have already covered in your statistics, which is basically point estimate and interval estimate. ठीक है. और hypothesis testing भी आपने कर रखा है, but still we will cover it. ना स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज कि आप सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो. ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन यू माइट हैव हर्ड इन द कंट्री कॉल्ड NSSO. सुना है इसके बारे में गाइस? यस सर. NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट दिस डज इज दैट इसके राउंड्स होते हैं. ठीक है. हर साल कोई ना कोई राउंड ले रहे होते हैं. कई बार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कई बार अनएम्प्लॉयमेंट का, कई बार सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का, कई बार फार्मर्स के ऊपर. तो NSSO जो है वो एक सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है और वो फील्ड में जाके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है, सैंपल्स लेता है एंड उसके बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में कुछ एम्फसाइज करता है. व्हाट इट डज इज बेसिकली सैंपल से आपने सैंपल लिया और सैंपल से आपने एक्स्ट्रापोलेट बेसिकली किया कि अच्छा पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, कंजम्पशन कितनी होगी. तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर रहे हो. एज अपोज टू दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसस. सेंसस इज व्हेन यू व्हाट हैपेंस एवरी 10 years, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी कंट्री का वो देखते हैं कि अच्छा कितनी पॉपुलेशन, हम बिल्कुल डिटेल में जाके हम वी ट्राई टू काउंट ईच एंड एवरी पर्सन. सो दैट इज, उसके अंदर भी एक्स्ट्रापोलेशन होती है. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होती है, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी वाइड एक्सरसाइज दैट यू डू. इनफैक्ट इंडिया का सेंसस ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 17th century में पहली बार सेंसस हुआ था या 1861 में हुआ था. आई डोंट रिकॉल इट when was the first census, but it's a very very old body, census body of India. ठीक है. So statistical inference basically talks about कि आप population से आप sample से based on a random sample can you draw any inference about the population क्या होगी. And if you can tell that, then how much, with what confidence can you say that? So can you say that इंडिया की एवरेज इनकम जो है वो X बार है. ठीक है. आपने X बार निकाला एक सैंपल से. कैन यू से कि इंडिया की एवरेज इनकम म्यू है.
Can you make some inference about the population income, average income? And if you saying that x bar represent mu, तो आप कह रहे हो कि ये पॉइंट एस्टिमेट है, आपने पॉपुलेशन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया और कह दिया कि ये हमारा बेस्ट फिगर है. ऑल्दो इट्स अ गुड वे टू सजेस्ट कि अच्छा हमारा ये बेस्ट, हमारे पास सैंपल से ही आया, बट दैट्स नॉट करेक्ट. that this x bar can vary from sample to sample. और हमने ये चीज देख ली थी कि x bar का भी अपना एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. इसका सैंपल मीन भी वेरी करता है सैंपल टू सैंपल. तो इंस्टेड ऑफ देन गिविंग अ पॉइंट, व्हाट वी डू इज, हम सैंपल से जो हमारे पास मीन आया उसमें प्लस माइनस कुछ एरर डाल देते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम कि इतना प्रोबेबिलिटी से हम ये चीज कह सकते हैं. उसको हम बोलते हैं इंटरवल अप्रोच. कि आपने एक नंबर नहीं दिया, आपने एक रेंज दी, और वो रेंज एक इंटरवल है, और एक इंटरवल के अंदर हम कह रहे हैं कि अच्छा इस इंटरवल के अंदर लाई कर सकता है म्यू विद दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी. ये आपका इंटरवल एस्टिमेट हो गया. और उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आएंगे. सो here you have guys, what the example that we are considering is that you have certain 28 कंपनीज जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके पास है, पीई रेशियो बोलते हैं इन फाइनेंस. पीई रेशियो आपके पास है 28 रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज का, जो पूरे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है. उनमें से आपने सिर्फ 28 कंपनीज का एक सैंपल उठाया, ठीक है, और उनका प्राइस टू इक्विटी रेशियो आपने देख लिया. इन सब को ऐड करके 28 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. व्हाट इज दिस गाइस? व्हाट इज दिस? सैंपल मीन एक्स बार है. दिस इज योर सैंपल वेरिएंस एस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके पास ये आ गया. नाउ व्हाट यू डू इज, अगर आप कहते हो, ठीक है, अगर आप कहते हो कि सैंपल मीन जो है, the process of generalizing the sample value x bar to the population value is essence of statistical inference. and अगर statistical inference जो है, अगर आप कहते हो ये जो x bar जो है, जो estimator है, ठीक है, x bar is what? x bar is an estimator of mu, ठीक है. ये सैंपल से आया है, सैंपल का स्टैटिस्टिक इसको बोलते हैं हम, सैंपल का स्टैटिस्टिक है ये, सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है. तो ये जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, इट इज एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन एवरेज विच इज EX, विच इज द पॉपुलेशन पैरामीटर. तो एक चीज ध्यान में रखना गाइस, पैरामीटर्स जो होते हैं वो यूजुअली पॉपुलेशन के होते हैं, और उनको आप एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो थ्रू सैंपल एस्टिमेट्स, ठीक है. तो एक्स बार एक एस्टिमेटर है ऑफ पॉपुलेशन मीन विच इज म्यू, ठीक है. और अगर आप उसको एक नंबर दे दोगे, सपोज एक्स बार को आप बोलो कि एक्स बार की कोई वैल्यू है से 10, दैट इज अ एस्टिमेट. गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, बिकॉज बहुत लोग ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं. यू नीड टू नो कि एक्स बार जो है वो अपने आप में एक एस्टिमेटर है. ये एस्टिमेटर कई वैल्यूज ले सकता है. सैंपल टू सैंपल ये एक रैंडम वेरिएबल है. दिस इज अ रैंडम वेरिएबल which can take multiple values. Each of these values are estimates. So a particular numerical value of estimator is called an estimate. For example, x bar is equal to 23. तो यहाँ पर जो 23 है वो एक estimate है. Estimation is the first step in statistical inference. तो सबसे पहले आप estimate करते हो कि आपका जो सैंपल से जो आपका जो एस्टिमेटर है उससे आपकी वैल्यू क्या आ रही है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू. नाउ
अगर हम दो अलग अलग सैंपल लेंगे तो उन दो अलग अलग सैंपल से दो अलग अलग x बार आएंगे, x बार 1, x बार 2, ये हमने बात करी। अगर हम ऐसे n लेंगे सैंपल्स तो उनसे हमें x n बार मिलेगा। तो हर एक सैंपल से अलग एक एस्टिमेट मिल रहा है आपको, एंड बेसिकली दैट इज योर सैम्पलिंग वेरिएशन या सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग वेरिएशन या सैम्पलिंग एरर, दैट इज बिकॉज x अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है विच इज मेकिंग x बार एज अ रैंडम वेरिएबल, और बिकॉज ये अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग होंगे इसलिए उसकी एक सैम्पलिंग वेरिएशन है। ठीक है, नाउ एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया सैंपल से, ठीक है, एक बार वंस, वेयरएज एस्टिमेशन इज वन साइड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द अदर। फिर हम देखते हैं कि ये जो एस्टिमेट है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है, कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लायक है या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है। उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वी यूज प्रायर जजमेंट और एक्सपेक्टेशन अबाउट द पैरामीटर। हम म्यू को कुछ अज्यूम करेंगे और उसको फिर एक्स बार से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वी विल कम टू दिस इज सेंस। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये डिफरेंस जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द प्रायर, फॉर एग्जांपल द प्रायर नॉलेज ऑफ an expert opinion tells us that the true PE value is say 20। अब सपोज अब हम कहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में एक एनालिस्ट के पास गया, ठीक है, एंड मैंने वहाँ पर जाके बोला उसको कि यार ये कोई भी अगर आप स्टॉक लोगे तो अगर आप ओवरऑल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप बात करो तो आपको क्या लगता है कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। तो बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इन स्टॉक मार्केट्स, से ही इज अ वेल्थ फंड मैनेजर, तो वो वेल्थ फंड मैनेजर कहेगा कि यार मेरे हिसाब से म्यू जो है वो 20 है, बट सैंपल से क्या आपके पास आया, ये 20 है जो आपको एक्सपर्ट ने बताया, और आप उसको मानोगे कि यार एक्सपर्ट बता रहा है तो हो सकता है पॉपुलेशन की यही वैल्यू हो, बट जो सैंपल से आया ये 23 है। ठीक है, तो हाउ फार इज 20 फ्रॉम 23? ठीक है, इज दिस अ स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज और आर दे द सेम वैल्यूज? ठीक है, तो हम इस चीज को जज करना चाह रहे हैं कि हाउ फार और हाउ दिस 23 एंड 20 वाली जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आर दे वेरी फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर और डू दे ओवरलैप ईच अदर? एसेंशियली व्हाट वी मीन टू से इज दिस, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई जिसका हमारे पास अभी जो आया वो 23 है, और हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि इसको आप 20 लिख लो। क्या ये ऐसे हैं दो डिस्ट्रीब्यूशंस या ये ऐसी हैं डिस्ट्रीब्यूशन? इसका एक पास है और ये भी पास है। गाइस ये अभी मैंने समझाया नहीं, बट किसी को ये चीज़ समझ में आई जो मैं अभी एक्सप्लेन करने की मैंने समझाया भी नहीं, बट आई एम जस्ट टेस्टिंग whether you get this point or not. And if someone gets it, can someone explain कि what I'm trying to say? कोई बता सकता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Any idea, anyone? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस है, ठीक है, और ये हमारे पास सैंपल से आया है। ठीक है, अगर ये सैंपल की जो वैल्यू है ये पॉपुलेशन के जो हाइपोथेसिस है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, ये डिस्ट्रीब्यूशंस देखो कितनी वाइड फार अपार्ट है, एक ऐसे है और सपोज एक को दूसरा ऐसा मान लो, ये दो बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूशंस है। दैट मीन्स जो सैंपल से जो वैल्यू आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन होगी वो अलग कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स दिस सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तभी सिर्फ इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है। अगर आप ओवरलैप देखो तो ओवरऑल ओवरलैप का एरिया देखो तो सिर्फ इतना, और अगर ये बहुत ज़्यादा पास में है तो देखो ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो रही है डिस्ट्रीब्यूशंस। ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो सैंपल है इसी पॉपुलेशन से आया होगा, बट थोड़ा सैम्पलिंग वेरिएंस की वजह से थोड़ा सा अलग है बस।
तो हम पॉपुलेशन और सैंपल को बेसिकली कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सैंपल जो है इसी पॉपुलेशन को बिलोंग करता है कि इस पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करता है. और दिस इज द एसेंस व्हिच वी विल सी इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नाउ जस्ट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट. I know I've just briefly explained this, but we will come back to this point once more because हमें hypothesis testing में करना ही यही है. Now we need to see that is 23 likely to be different from 20 जो हमने hypothesize किया, and that is what is hypothesis testing. But let's first talk about estimation of parameters. Now हमने इसमें ऑलरेडी जल्दी पहले बात कर चुके हैं. ठीक है, we'll quickly go through this. We know that we have a random variable x which follows a particular distribution, and suppose x follows your normal distribution with mean as this and variance as this. To estimate these unknowns, the usual we assume a random sample of n size with a known probability distribution, and use the sample to estimate the population parameters. तो हम सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन. नाउ जब आप एस्टिमेशन के बारे में बात करते हो तो आप एस्टिमेट दो तरीकों से कर सकते हो. एक आप पॉइंट से कर सकते हो और दूसरा आप इंटरवल से कर सकते हो. अभी हम वो देखेंगे. हमने जो 23.5 निकाला, ये जो निकाला, दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेट. ठीक है, ये एस्टिमेटर था एक्स बार, ये पॉइंट एस्टिमेटर है. दिस एस्टिमेटर की वैल्यू जो है हमें पता है रैंडम सैंपल टू सैंपल वेरी करेगी, और जो इसका मीन आया है वो उस मीन को हम बोल रहे हैं कि वो एक पॉइंट एस्टिमेट है. ठीक है. देन नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा जो मीन है पॉपुलेशन का, हम सीधा बोल दें कि मीन जो है 23.25 है. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू इज हम उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं. हमें पता है कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एक्स अपॉन, ये हमें पता है एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. नाउ गाइज ये हमें कैसे पता चला था? क्विक रिवीजन. ये हमें कैसे पता चला था? किस थ्योरम के थ्रू? गाइज आई कांट हियर एनीवन. मुस्कान, वर यू सेइंग समथिंग? नो. अरे सेंट्रल लिमिट थ्योरम गाइज, CLT, सिंपल CLT के थ्रू वी गॉट टू नो दैट ये जो एक्स बार है इसका और हमने ये बात करी थी कि आपका CLT में याद हमने कहा था कि आप जो सैंपल जो हो वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से उठा लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल हो, नॉन नॉर्मल हो, काई स्क्वायर हो, F डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी से भी आप सैंपल उठा लो, उसके सैंपल का जो मीन होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी तरह, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा हमेशा, विद मीन एज दिस, विद मीन एज ए म्यू एक्स एंड वेरिएंस एज सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हमें CLT से मिलता है इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम से. ठीक है ना. ये चीज हमने यहाँ लिखी और फिर हमने उसको क्या करा, हमने जैसे स्टैंडर्डाइज करा था. स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या होता है? स्टैंडर्डाइज करने का तरीका होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ठीक है. बट यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, और ये स्टैंडर्डाइज किसको करते हैं हम? ये जो स्टैंडर्डाइज, ये एक्स है, सॉरी, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. बट अगर हम एक्स बार को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स को स्टैंडर्डाइज करा तो ये तरीका है, तो एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स बार, म्यू एक्स की जगह तो म्यू एक्स ही रहेगा क्योंकि ये तो पॉपुलेशन का मीन है. नाउ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है सिग्मा. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार? एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एक्स बार का वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन रूट एन. हमने वो नीचे डाल दिया तो हमें स्टैंडर्डाइज कर दिया. Once we have standardized a variable, we know that it is now a normally distributed variable with mean as 0 and variance as 1. ठीक है ना. अब जैसे ही हम किसी चीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो हमारे पास यूजुअल Z टेबल्स, सुंदर सी Z टेबल बन जाती है और Z टेबल से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेरिएंस नहीं होगा पूरे पॉपुलेशन का, तो हम उसको एस्टिमेट करेंगे S.
and this p distribution we know has a n-1 degrees of freedom. ये हमें पता है. now what we do is, अगर हम t टेबल देखें तो t टेबल की रेंज अगर हम देखें तो अगर आप उसकी वैल्यू देखो, t की वैल्यू देखो, और एक पर्टिकुलर डिग्री t की टेबल जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिफाइन होती है. लेट्स गाइस सी t की टेबल ही देखते हैं. I don't want you to miss out on this. Guys, this is a little more advanced book than yours, but I just want t. Let's see t की टेबल. ठीक है, t की टेबल हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिफाइंड होती है. इस केस में हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 27 होना चाहिए था, 28 पे क्यों दे रखा है इन्होंने? This should have been 27. हाँ 27 पे, 27 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हम देखेंगे. ठीक है, क्योंकि n-1 है, 28 हमने फॉर्म्स ली थी, -1 27 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हम अलग अलग वैल्यूज देखते हैं. अब हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं 95% एरिया. तो बेसिकली 90, अगर 2 टेल टेस्ट है तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर 2.5% एरिया होना चाहिए, 2.5%, यहाँ पर 2.5% एरिया होना चाहिए. ठीक है, तो दैट मीन्स हम ओवरऑल 5% एरिया देख सकते हैं. अगर एक टेल में देखना चाहें तो 5%, 2 टेल में देखना चाहो तो 2.5. तो ऊपर जो है आपके पास एक टेल का है, दूसरा नीचे आपके पास दोनों टेल का ऐड करके, तो आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर. ये एक टेल में देखना चाहोगे तो 2.5%, दूसरी दोनों टेल में ऐड करना चाहोगे तो 0.5. 27 में आप ये वैल्यू देखोगे तो आपको वैल्यू मिल गई 2.052. देखना समझ में आया गाइस? टी टेबल क्लियर? देखना गाइस. ओके, ना अब टी टेबल आपने यहाँ से देख ली. उसके बाद आप गए यहाँ पर, आपने देखा कि टी की वैल्यू. नाउ रिमेंबर गाइज, आपने जो टी की वैल्यू देखी है वो बेसिकली मॉड्यूलस टी की वैल्यू देखी है, उसकी प्लस माइनस वैल्यूज होंगी. तो प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू इट्स सिमेट्रिक अराउंड 0. ये 2.5% एरिया, ये 2.5% एरिया हो गया. हमारे पास ये आ गया. ठीक है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट टी लाइज, टी की जो कंप्यूटेड टी की वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करेगी, उसका 95% प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अब हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं. सिंपल, हमने क्या किया, ये जो टी का जो इक्वेशन था, हमने टी का इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्टली प्लग इन कर दिया और इसको हमने रीअरेंज कर दिया. ठीक है, यू कैन जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू यू कैन जस्ट राइट टी अल्फा बाय 2. कैन आई राइट लाइक दिस? Can I write this as t alpha by 2 where alpha is equal to 5%. ठीक है, 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे मैं देखना चाहता हूँ, तो 5% कॉन्फिडेंस लेवल का 2 टेल पे क्या हो जाएगा? बेसिकली 2.5% ऑन ईच टेल. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली t माइनस अल्फा बाय 2 एंड दिस इज t, मतलब माइनस इन द सेंस ये माइनस वाली टर्म. ठीक है, तो माइनस अल्फा बाई माइनस टी अल्फा बाई 2 एंड ये प्लस टी अल्फा बाई 2. तो मैंने इस तरीके से इसको पुट कर दूंगा. एंड नाउ ऑल यू डू इज, आप ux को बीच में रख के बाकी सारी चीज़ों को इधर उधर रीअरेंज कर दो, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. विच मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी, guys see the way that I'm stating this, the probability that the true population mean will lie between this lower bound and this upper bound is 95%. So all I'm saying is, coming back to this, all I'm saying is, if you go to interval approach के अंदर what you have is t minus alpha by 2, यह probability है, t plus alpha by 2 is some percentage. वो percentage डिपेंड करेगा आपकी n-1 पे एंड अल्फा पे. ठीक है, अभी हमने मान लिया कि 95% है. ठीक है, तो 95% पे हमें अगर हम बात करें तो ये 5/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा. ठीक है, और t की वैल्यू, ऑल यू डिड वाज, t की वैल्यू हमें पता है क्या है, x बार माइनस म्यू एक्स अपॉन सिग्मा एस एक्स अपॉन. ठीक है, तो बस आप इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो और बीच में ux रख दो, तो आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी, आपके पास एक रेंज आ गई, एक लोअर बाउंड की
which is basically x bar minus t alpha by 2 into standard error. इसको हम standard error of x भी वो भी बोलते हैं, into root n, ठीक है, mu x bar plus t alpha by 2 is equal to 95%, ठीक है. So this basically is telling you कि this is the lower bound and this is the upper bound, ठीक है. और हमारा जो हमारा जो लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, ये ux का इस लोअर बाउंड और इस अपर बाउंड के पास मैं ये इतनी प्रोबेबिलिटी से बता सकता हूँ, 95% प्रोबेबिलिटी से. ये लोअर इंटरवल है और ये अपर हायर इंटरवल है, ठीक है. सो इस तरीके से हम इसका एक इंटरवल निकालते हैं. लेट्स सी दिस थ्रू इन दिस वे, ठीक है. दिस गाइज इज कॉल्ड एज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस आई कैन राइट दिस एज टी एक्स प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये मैंने आपको बताया था, इसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, और ये हमने प्लस माइनस करके मैंने बस रेंज निकाल दी, ठीक है. सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज दैट अगर मैं यहाँ पर ये जो अपने आप में ये जो रेंज है, ये रेंज स्टैटिक है कि ये रेंज चेंज कर सकती है? ये एक रेंज है गाइस. क्या ये इंटरवल स्टैटिक है कि ये इंटरवल एक रैंडम वेरिएबल है? सैंपल चेंज करेंगे तो ये रेंज भी ऑल्टर होगी. एग्जैक्टली गाइस, ग्रेट. सो ये पॉइंट जो है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है. जो आपने इंटरवल निकाला है, इंटरवल इन इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल. वो रैंडम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्स बार चेंज होता रहेगा बार बार, ठीक है. तो उसकी वजह से ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल बन जाता है. सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा, और बिकॉज सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा इसीलिए एरर का चांस होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि एरर का चांस है. अब हमने क्या कहा, हमने एक्स बार निकाल दिया गाइस, हमने उसका अपर लिमिट निकाल दिया, हमने उसका लोअर लिमिट निकाल दिया, हमने वो वैल्यूज प्लग इन कर दी, और वैल्यूज प्लग इन करने के बाद ये वैल्यूज हमने 95% इंटरवल के लिए करी और ये वैल्यूज हमने 99% इंटरवल के लिए की. नाउ गाइस, अगर मैं 99% इंटरवल लेना चाहूँगा तो मेरी रेंज बढ़ेगी कि मेरी रेंज कम होगी? दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलना चाहता हूँ कि विराट कोहली की एवरेज 60 है, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली 58 से 62 के बीच में मारेगा, और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं यार विराट को मैं 99% श्योर होना चाहता हूँ, तो मैं क्या रेंज दूंगा? मैं रेंज ज़्यादा दूंगा कि कम दूंगा? द इंटरवल वाइडन्स, एग्जैक्टली. तो अगर मैं जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि यार विराट कोहली 40 से लेके 70 के बीच में मार पाएगा, ठीक है. मैंने रेंज बढ़ा दी, बट उसकी वजह से क्या कहते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल तो बढ़ गया, ठीक है. बेसिकली मेरा प्रिसीजन जो है वो कम हो गया, बट मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ वो बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. So this is your lower limit and upper limit. This is now the given interval in this is a random interval. इसको हम random interval बोलते हैं. Random interval. क्यों random interval है? क्योंकि x बार random variable है. x बार क्यों random variable? क्योंकि xi random variable है, ठीक है. तो ये एक random interval है because it's based on x बार. और दूसरी चीज जो आपने मिस कर दी वो है sx. sx भी तो एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी तो हर सैंपल टू सैंपल मूव करेगा, ठीक है. सो द ट्रू पॉपुलेशन मीन म्यू एक्स ऑल्दो अननोन इज सम फिक्स्ड नंबर, देयरफॉर दैट इज नॉट अ रैंडम. तो जो म्यू एक्स है वो तो रैंडम नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है. नाउ दस वन शुड नॉट से कि देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट म्यू एक्स लाइज इन दिस इंटरवल 95 with 95%. That is not a correct statement to make. तो you cannot fix a x. आप एक x fix नहीं कर सकते and you say that
x की वैल्यू जो है जो आपने यहाँ पर निकाली, सपोज ये, you cannot say that there is 95% probability that mu x will lie in this range. You cannot say this. क्यों? क्योंकि ये एक x पे based है. What you can say is that if I take 100 such samples, then in 95 of those samples, the true population mean will contain this particular. So the correct statement is that there is a probability 95%, there is a probability of 95% that the random interval contains the true ux. तो जब तक आप ये लिख सकते हो कि probability of x bar plus minus t alpha by 2 into standard error of x bar is 95%, ये आप लिख सकते हो. बट एक बार आपने ये x bar निकाल लिया और सपोज कह दिया कि ये 20 है, उसके बाद ये वैल्यूज निकालने के बाद आप प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते हो कि ये 95% प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी तो या तो 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी. अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 है या 1 है. कैन समवन एक्सप्लेन मी कि मैंने क्या बताया? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट किसी को समझ में आया कि नहीं आया? कैन समवन एक्सप्लेन कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एनीवन? किसी को नहीं आया? अरे बताओ भाई, कहाँ रह गए? What I'm saying is guys कि ये जो आपने रेंज निकाली है x बार की, ये x बार है और इसका एक लोअर रेंज है और एक अपर रेंज है. ये रेंज जो है ये वेरी करेगी. 100 सैंपल लोगे तो 100 ऐसी रेंज आएंगी. डू यू गाइज अग्री गाइज? यस, नो, क्या चल रहा है? यस सर. ठीक है, 100 सैंपल लोगे तो ऐसी 100 रेंज आएगी. हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे 100 सैंपल लोगे तो उनमें से उन 100 सैंपल में से 95 सैंपल्स के अंदर जो ट्रू यूएक्स है लाई कर जाएगा इसके अंदर. बट अब आपने एक ही सैंपल की बात करी, 100 की नहीं बात करें, एक ही सैंपल के बारे में बात कर रहे हो. एक ही सैंपल का ये 20 आया, ये आया 18, ये आया 20. नाउ असली जो पॉपुलेशन मीन है या तो वो इस रेंज में लाई करेगा या तो विराट कोहली 48 से 52 के बीच में उसकी एवरेज होगी या नहीं होगी. अगर नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, अगर हो गई तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई. अगर उसकी एवरेज 50 है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. 100% की पॉपुलेशन मीन इसके अंदर लाई कर गया. बट अगर वो लाई नहीं करा तो 0% प्रोबेबिलिटी. अब समझ में आया? अगर आप सैंपल की वैल्यू पुट कर चुके हो तो उसके अंदर या तो विराट कोहली की एवरेज होगी या नहीं होगी. बट अगर आपने सैंपल की वैल्यू पुट नहीं करी, अगर आप अभी भी सैंपलिंग ही करे जा रहे हो और आपके पास एक्स बार ही है, आपने कोई एक्स बार निकाला नहीं है, कोई सैंपल फिक्स नहीं किया, तो आपको पता है कि 100 सैंपल में से 95 सैंपल्स में मेरी ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, 5 सैंपल्स में शायद से ना. एंड दैट इज कॉल्ड एज की सैम्पलिंग. जो आपका रैंडम इंटरवल है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, सैंपल की प्रोबेबिलिटी नहीं होती. सैंपल की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 होती है. सो दिस सेज दैट इफ वी कंस्ट्रक्ट इंटरवल्स say 100 times, 95 of those 100 intervals will include the true population mean. Now thus the interval estimate is in contrast to the true, क्योंकि यहाँ पर degrees of probability confidence आ जाता है. ठीक है. More generally, suppose x is a random variable with some probability distribution function PDF, and suppose we want to estimate the parameter of that distribution, say mean of that distribution, तो उसका एक lower limit and upper limit होगा जो 1 माइनस इससे लाई कर रहा होगा. और जो हमने अभी यहाँ बात करी सेम चीज हमने, where alpha here is basically called as type 1 error, where type 1 error is the probability. कोई बता सकता है type 1 error क्या होता है? 100% पढ़ा तुम लोगों ने. Rejecting the null hypothesis it is actually true. Yes, exactly. हम इसके बारे में बात करेंगे. That just a second guys. Yes, so alpha is basically the probability of rejecting a true h0. इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ. इस कल की क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास के बाद, you will not have to remember these definition ever again the way that I'll explain it to you. ठीक है.
ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा लाइफ में कि अल्फ़ा क्या है. अल्फ़ा इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल, ठीक है, इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ट्रू एच नॉट, ठीक है. एंड हम बीटा के बारे में भी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग. ना हम इन दोनों चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये क्या है. इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं. एंड 1 माइनस बीटा को हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं. कैन समवन टेल मी 1 माइनस बीटा क्या है यहाँ पर? Accepting the null hypothesis which is true. Nope, that is not 1 माइनस बीटा. आप अंडरलाइन कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते गाइस. जब बीटा ये है, अंडरलाइन कंडीशन क्या है? अंडरलाइन कंडीशन इज कि फॉल्स एच नॉट है, ठीक है. तो ये है बेसिकली रिजेक्टिंग अ फॉल्स एच नॉट. हम इसके बारे में बात करेंगे. दीज आर दी 3 major things that we will cover, ठीक है. एंड okay, so let us go back. We will see that what is this probability of this the probability of committing a type 1 error, ठीक है. हम इसके बारे में देखेंगे, बट इसके लिए we need to go into hypothesis testing. Now properties of point estimates. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है कि वो लीनियर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, मिनिमम वेरिएंस होता है, एफिशिएंट होते हैं, ब्लू होते हैं, विच इज़ बेसिकली बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट. ये ब्लू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. ये ब्लू के बारे में पढ़ा है गाइस हम लोगों ने? ब्लू 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 गाइस, हाँ कि ना? तो ब्लू इज़ बेसिकली बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट्स. ये हम बहुत ज़्यादा डील करेंगे क्योंकि यही ज़रूरत होती है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में. क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो ब्लू होते हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस. एंड लीनियरिटी का क्या मतलब होता है कि एक्स बार जो है जो एस्टिमेटर है दैट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सैम्पल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो सैम्पल ऑब्जर्वेशंस करा, उनका सम करा, उनका एवरेज करा, तो आपका जो एस्टिमेटर है वो लीनियर है, ठीक है. अनबायस का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है. तो इसको हम अनबायस बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है. दिस इज दी, ये बायस एस्टिमेट है क्योंकि अगर, और ये अनबायस्ड है जहाँ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और अगर कोई और एक्स स्टार है उसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वो दैट इज नॉट इक्वल टू म्यू, तो वो बायस एस्टिमेटर. देन रीड अबाउट द फैक्ट दैट अबाउट हाउ मीडियन, व्हाट इज द केस ऑफ मीडियन के बारे में पढ़ना कि मीडियन अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि बायस एस्टिमेटर, ठीक है. सिमिलरली मीडियन वर्सेस मीन, मिनिमम वेरिएंस के बारे में बात करेंगे कि 3 बेसिकली आपके पास एस्टिमेटर्स हैं. In sampling distribution you have 3 estimators of mu x, ठीक है. एक mu1x है, mu2x है, mu3x है. Now the estimator with the minimum variance, that is जिसका वेरिएंस ux के सबसे ज़्यादा कम है, that is the minimum variance one. तो जैसे ये हमारे पास 3 एस्टिमेटर है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है, ठीक है. Can you tell me which of these distributions has the minimum variance? U1, U2 और U3 कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है guys? mu3. Okay guys, mu3 has the minimum variance but it's a bias estimate. इसका देखो क्या मीन आ रहा है mu3 का. mu3x is not equal to mu x. mu3 hat x is not equal to mu x. तो ये बायस एस्टिमेट है, ठीक है. तो इस तरीके से वी कैन टॉक अबाउट दिस, ठीक है. mu3 हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस बट mu3 इज अ बायस एस्टिमेट. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अनबायस एस्टिमेट्स में देखो तो अनबायस एस्टिमेट्स में mu1 hat हैज द लोएस्ट वेरिएंस व्हिच इज अनबायस्ड एज वेल एज मिनिमम वेरिएंस, ठीक है. और ये लीनियर भी होगा तो ये ब्लू बन जाएगा. देन बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट्स, ये बेस्ट लीनियर आपका अनबायस्ड एस्टिमेट बन गया, ठीक है. एंड आपका म्यू एक्स क्यों होगा? क्योंकि मीडियन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीडियन वाले का जो वेरिएंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू
देखो मीडियन वाले का सैम्पल वेरिएंस इसका वेरिएंस देखो, वेरिएंस ज़्यादा है एंड मीन वाले का वेरिएंस कम है, ऑल्दो दोनों के दोनों अनबायस्ड हैं, दोनों अनबायस्ड हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज बेसिकली जब आप n इंक्रीज करोगे तो आपका जो वेरिएबल होगा वो पॉपुलेशन मीन की तरफ जाएगा। तो एन एस्टिमेटर is basically said to be consistent if it approaches the true value of the parameter as the sample size increases। तो जैसे sample size increase होना शुरू हो जाए और आप population of mu x की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओ, that is तो आपका x bar mu x की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो that is called as a consistent estimator। So ये हमारे basics थे। Next class that we are going to take up is all about hypothesis testing, कि hypothesis testing, one-sided, two-sided, confidence interval approach, and then ultimately हम ये कोई भी approach नहीं follow करेंगे। I will teach you something called p-value test of significance approach, confidence interval approach, और फिर उसके बाद हम सीधा चेक करेंगे p-value। हमें ये सारी चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लास्ट में p-value करते हैं। Have you done p-value guys in your previous classes? I'm sure you might have done p-value. Yes, sir. So that will be a good revision for you. What is p-value? How is it related to alpha? And the details of it. Let me just first